CBSE Mathematics Class 11 Chapter 2 Exercise 2.2 Question number 1. Let A is equal to set है 1, 2, 3, 4 up to 14. Define a relation R from A to A by a relation x, y such that 3x minus y equal to 0, where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. पहले तो रिलेशन देखिए क्या दिया हुआ हमारे को 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस दिए हुए रिलेशन से हम x और y में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए रिलेशन R इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे a से। When x is equal to 1, तो y will be equal to 3. When x is equal to 2, then 3 into 2, that is y is equal to 6. When x is equal to 3, so y will be equal to 3 into 3, that is 9. Y is equal to 3 into 4 when x is equal to 4. So 3 into 4, that is 12. In this way, we can find up to 14, means we can't proceed further. Suppose if you just put 3 into 5, that will be 15, but 15 does not belong to set A. Hence, we have to stop here. So, relation means ordered pair we will make. So, x की हम लेंगे यहाँ से वैल्यू 1 और 3, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. These are the order pair. So फर्स्ट जो होगा दैट विल बी x की वैल्यू होगा, दूसरा जो होगा y की वैल्यू होगा। सो डोमेन हम देखेंगे, डोमेन किस में होगा? जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द ऑर्डर डोमेन। ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाया हमने 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। सो द फर्स्ट एलिमेंट जो होगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ रिलेशन। R स्टैंड फॉर रिलेशन। सो 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। और रेंज ऑफ रिलेशन जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ रिलेशन, दैट इज 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। नाउ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? पूरा कंप्लीट सेट जो है दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 up to 14. That will be the codomain. So codomain means the range is a subset. Range is a subset of codomain. अब देखिए 3, 6, 9, 12 है इसमें 3, 6, 9, 12 yes है। This means that the range is subset of codomain. Now proceed further. Question number 2. Define a relation R on the set of natural n of natural numbers by R means the relation that is xy such that y is equal to x plus y. X plus 5. So x is a natural number and less than 4. x क्या है? x is a natural number less than 4. So x and y both belongs to natural number. Depict this relationship using the raster form. Write down the domain and the range. So first of all you see the relation which is given in set builder form, that is xy such that y is equal to x plus 5. X belongs to natural number and x is less than
4. X is less than 4. Already it is given. You see, X is a natural number less than 4. So Y will be equal to 1 plus 5. देखिए यहाँ पर x plus 5 लिखा हुआ, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू रखा 1 और 5 गिवन है ऑलरेडी. सो 1 plus 5 that is 6. Y is equal to 2 plus 5 second, that is 7. Y is equal to 3 plus 5 8. अब हमने यहीं पर क्यों स्टॉप किया, क्योंकि हमारे को हमारी लिमिट कंट्रोल कर दिया गया है, कर्टेल्ड कर दिया गया है. दैट इज x इज लेस देन 4. वी कांट टेक मोर देन 4. 4 से नीचे होना चाहिए. तो हमने क्या लिया है, 1 2 3. सो 1 के जैसे ही हमने x रखा तो y की वैल्यू क्या है, 6. सो ऑर्डर्ड पेयर में आपका बन गया 1 6. जब x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या है, 7. तो 2 and 7, 3 and 8, and this tabular form is known as roster form. देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ डोमेन ऑफ रिलेशन, मैंने डायग्राम से दिखाया है, एरो डायग्राम. सो और ये को डोमेन दिखा दिया है 6 7 8, एंड दिस इज द रेंज आल्सो. द रेंज ऑफ द रिलेशन इज 6 7 8. रोस्टर फॉर्म हो गया आपका 1 6 2 7 3 8. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3. A set A is equal to 1 2 3 5 and B is 4 6 9. Define a relation R from A to B. हमारे को दो सेट दिया हुआ, सेट A और सेट B. सेट A में क्या है, 1 2 3 5. B में क्या है, 4 6 8. These are the elements of the set A and set B. So the relation from A to B by R is equal to x and y is the difference between x and y is odd number. अब हमारे को देखना है difference is odd and x belongs to A and y belongs to B. जो y है वो बिलोंग करता है किससे, B से, और x किससे बिलोंग करेगा, A से. Write the relation in the roster form. The relation देखिए x y such that x minus y is odd number. अब हमारे को देखना है x minus y odd number आना चाहिए, x belongs to A होना चाहिए और y belongs to B होना चाहिए. अब रोस्टर फॉर्म बनाइए. अब देखिए इसका 1 और 4 में क्या डिफरेंस है, 3 क्या चीज़ है, ऑड नंबर है. सो इट फुलफिल द गिवन कंडीशन. ये जो ये रिलेशन दिया है, इट इज ए रूल यू कैन से. सो द 1 और 4 में क्या डिफरेंस है, 3 क्या है, ऑड नंबर है. सो 1 and 4. 1 and 6 देखिए, अब 1 और 6 में क्या डिफरेंस है, 5. अब 1 और 9 में क्या डिफरेंस है, 8 हम नहीं ले सकते हैं. क्यों, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है. हमारे को द डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई शुड बी ऑड नंबर. सो 1 4 1 6. अब आ जाइए नेक्स्ट, 2 और 4 में जब डिफरेंस देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इवन नंबर है. अब 2 और 6 का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 2 minus 6 दैट विल बी, तो वो भी हमारे को इवन नंबर मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, 2 and 7 का जो डिफरेंस है दैट इज 2 and 9 का जो डिफरेंस है 7 है. सो वी विल टेक इट 2 and 9. और 3 और 4 में 1 डिफरेंस है, 5 and 4 में 1 डिफरेंस है, 5 और 6 में भी 1 डिफरेंस है. सो डिफरेंस शुड बी ऑड नंबर, मीन्स x माइनस वाई. यहाँ पर दिया हुआ है ना, द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ऑड. अब देखिए यहाँ पर मैंने एरो डायग्राम से दिखाया है
हियर द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए हर एक का मैंने एरो मार्क से दिखाया है। 1 का 4 से, 1 का 6 से, फिर 3, 4 और 2 का 9 से देखिए डिफरेंस है। 2 का और किससे है? बस 2 से 9 का है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The figure shows a relationship between the sets A and P and Q. Write this relation first in the set builder form, second the roster form. What is its domain and range? अब इसके साथ साथ हमारे को डोमेन और रेंज भी बताना है। अब देखिए सेट P में क्या है? 5, 6, 7। Q में क्या दिया हुआ? 3, 4, 5। देखिए रिलेशन देखते हैं एक्स वाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू P एंड वाई बिलोंग्स टू Q। अब x माइनस वाई दैट इज 2, सो 5 माइनस 3 दैट इज 2, सो 5, 3 हो गया। ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर गए देन दैट विल बी टेकन एज ए एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ऑर्डर पेयर में लिया जाएगा। देखिए 5 और 3 हमने रखा यहाँ पर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब देखिए 6 माइनस 4 दैट इज 2, 7 माइनस 5 दैट इज 2। सो डोमेन क्या हो गया हमारा? 5, 6, 7। ये पार्ट हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या हो गया? 3, 4, 5, 3, 4, 5। और ये जो हो गया 5, 3, 6, 4, 7, 5, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन। उस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। Now come to the question number 5. Question number 5. Let A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let R be the relation on A defined by AB. A B belongs to A and B is exactly divisible by A. जो B है that is exactly divisible by A, small a, means these are the element of it. Write the relation in roster forms. और second part है क्वेश्चन का, find the domain of range, sorry domain of relation, find the range of relation. अब देखिए रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या क्या बनेगा हमारा। अब देखिए हमारे को लेना है इसी से 1 और 1, 1, 2, 1, 3। क्यों? देखिए B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, तो इसमें 1 है, 1 से 1 डिवाइड होगा। और यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 2 है, सो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। सो ये फर्स्ट वाला A हो गया, सेकेंड वाला B हो गया। सो 2 इज डिविजिबल बाई 1। सो 1 कैन डिवाइड 3 ऑल्सो, 1 कैन डिवाइड 4 ऑल्सो, 1 कैन डिवाइड 6 ऑल्सो। सेकेंड क्या होगा? 2 and 2 मीन्स 2 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 2, 4 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, मीन्स सेकेंड नंबर जो है वो B से है रिलेटेड। 2 कैन डिवाइड 6, और यू कैन से 6 इज डिविजिबल बाई 2, 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 6 is divisible by 3, 4 is divisible by 4, 6 is divisible by 6. So in this way we can complete our roster form. Now find the domain of relation.
अब हम देखेंगे सेकेंड एलिमेंट जो होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन, दैट इज 1 2 3 4 6। ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन। फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन। अब हम देखते हैं इसमें 1 2 3 4 6 जो सेकेंड एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर एरो डायग्राम से एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन आर मैंने ये दिखाया हुआ, केवल हमारे को आंसर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। लेकिन इन एडिशन टू दैट आई हैव represented the relation by arrow diagram also. Now come to the question number 6. Determine the domain and the range of the relation are defined by r equal to सेट में देखिए x और x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। जो x है किससे बिलोंग करता है? 0 1 2 3 4 5 होल नंबर है। देखिए अब हमने रखा है यहाँ पर, देखिए x के क्या दिया है 0 1 2 3 4 5 और रिलेशन क्या दिया है y इज इक्वल टू क्या दिया है x प्लस 5। यहाँ पर दिए x प्लस 5। अब ये 0 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 में 5 प्लस करोगे 6 आएगा, 2 में 5 प्लस करोगे 7 आएगा, 3 में 5 प्लस करोगे तो 8 आएगा, 4 में 5 प्लस करोगे तो 9 आएगा, 5 में 5 प्लस करोगे 10 आएगा। सो द डोमेन, अब हम डोमेन ऑफ रिलेशन कैसे लेंगे? जो फर्स्ट है दैट इज 0 1 2 3 4 5। रेंज जो होगा दैट विल बी सेकेंड लाइन, सेकेंड रो में दिया हुआ है, that is 5 6 7 8 9 10। so relation in roster form, relation in roster form can be written like this: 0 5 0 5 1 6 1 6 2 7 2 7 3 8 3 8 लिख दिया, 4 9 4 9 5 10। so in this way we have completed the roster form ऑफ रिलेशन। नाउ एरो डायग्राम के द्वारा हमने इसको शो किया है कैसे, देखिए डोमेन है x, सो 0 1 2 3 4 5। अब रेंज जो है y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज एरो डायग्राम रिलेशन R। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Write the relation R x and x cube such that x is a prime number less than 10. x is a prime number less than 10। ये कटा हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए x क्यूब होना चाहिए सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब पहले तो हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ ये, तो हम लेस देन 10 से के बीच में 10 से नीचे नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर है पहले तो वो लिख दीजिए एज ए डोमेन। देखिए 2 3 5 7 दीज आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 8। देखिए यहाँ पर 2 और 8 रोस्टर फॉर्म में तैयार किया। 3 का क्यूब कीजिए, 3 3 जा 9 3 जा 27। सो 3 and 27 रोस्टर फॉर्म में हो गया। 5 into 5 25, 25 into 5 125, क्योंकि x क्यूब दिया हुआ है x कमा x क्यूब। सो ये x क्यूब है, यहाँ पर वैल्यू है x का। देखिए 2 3 5 7, 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3 4 3। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ रिलेशन। These are the prime number less than 10. Now come to the question number 8. Let A
is x, y, z. There are three elements x, y, z, and B there are two elements 1, 2. Find the number of relation from A to B. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, A इंटू बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलता है. पहले हम x लेंगे, x1 x2, फिर y से लेंगे y1 y2, z1 z2. अब कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6. There are 6 elements in the Cartesian product, that is A into B. So there are 6 elements in A into B. Therefore the number of subsets is 2 raised to power 6 and it will be equal to 64. 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. So number of relation from A to B is 2 raised to power 6. Now come to the last question, that is question number 9. Let R be the relation on Z. Z means the integer defined by relation R A B such that A and B belongs to Z. Z means, again I repeat it, it is an integer, set of integer. So A minus B is an integer. अब हमारे को देखना है कि A माइनस बी जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए. अगर हम कोई भी नंबर लेंगे A and B, let it be the A is equal to A is equal to A and B is equal to also A. At that time A minus A, that is 0. 0 belongs to integer. अब हमने लिख दिया है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश डैश. लेफ्ट साइड भी डैश, राइट साइड भी डैश डैश करके रखा है. अब रेंज क्या आएगा हमारा? रेंज इसी करने का मतलब, अगर हम अप्लाई करते हैं A माइनस बी करेंगे, एक सेट लेंगे, तो जो भी आएगा रिजल्ट दैट विल बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर Z, where A and B belongs to Z and A minus B belongs to Z. अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर A की जगह पर हमने 15 लिया है, B की जगह पर -7 लिया है. अब दोनों का जो डिफरेंस देखते हैं क्या आता है. 15 minus -7, that is 22. 22 is also an integer. Let us take the another example, that is -9 and 15. So इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो -24. -24 is a negative integer. So A minus B is also integer, that is a Z. 40 minus 85 रख लिया तो -45. -45 is an integer. So 20 -24 -45, these belongs to Z. इसका मतलब क्या हो गया? A minus B that belongs to Z. Hence this will be the find the domain and the range of the relation. In this way the question is completed. Now